very important in terms, because now Parkinson is just not the name of motor dysfunctioning, or Parkinson is just not the name of some motor manifestation, which in the first talk we usually come across. There are a lot of many things which we as clinician, as a neurologist, see, which are the non-motor function. And this is very important to learn, to know what are the non-motor manifestations of Parkinson's disease. This talk will be delivered by Dr. Nabeel Muzafar, who is fellowship in movement disorder from United States of America. He is currently assistant professor in Shifa International Hospital, Islamabad. I request him to share his screen and start his talk. His topic is non-motor manifestation of Parkinson's disease. Dr. Nabeel. Assalamu alaikum. I hope you can hear me well. Thank you so much, Professor Abdul Malik, for the kind introduction and for organizing this event. And I also want to thank Professor Nadir Ali Said, who is the chair of this session, and also Dr. Manullah Kakar, who is the president of the Movement Disorder Society of Pakistan. Thank you so much for inviting me for this talk. And I'm glad to see in the attendees list, I can see some of our former residents. I would like to say hello to Faleha and Umaira. Thank you so much for joining in. So as Professor Abdul Malik has rightly said, Parkinson's disease is not just a problem of the motor symptoms. There are many non-motor symptoms that are frequently seen in Parkinson's disease. And this is the topic of my presentation today. And I think we're running a little bit behind in my talk, but I would try to finish it up in like 15 minutes or so. And I'm sorry, as today is my working day, I have blocked my clinic for a certain time. I might not be able to take questions in the end. So I will try to limit my talk in 15 minutes and then take questions 5 minutes if allowed by the chair and co-chair. So yeah, non-motor symptoms in Parkinson's disease. Recently, there has been a lot of attention has been driven to this, and the UPDRS, the Unified Parkinson's Disease Rating Scale, has been expanded to include many non-motor symptoms in Parkinson's disease as well. And they are seen in both genetic and sporadic forms of Parkinson's disease. Some of the non-motor symptoms may be actually pre-motor symptoms, as Dr. Shaib Lukman has very rightly said, that many symptoms that can precede, including depression, constipation, REM behavior disorder, and so on. And they are a lot more common. A large study showed that out of 1,000 patients of Parkinson's disease, 98.6% reported at least one non-motor symptom. That actually tells you how common they are. In comparison to that, tremor is only present in 60 to 70% of patients with Parkinson's disease. So these are really common. Always ask the patient. It is very hard during a clinical encounter to actually ask about all of the non-motor symptoms. One solution that we used to do in our setup in USA was, जब पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठा होता था, वेट कर रहा होता था और फॉर्म्स वगैरह भर रहा होता था, तो उसी में हम उसको एक क्वेश्चनियर दे देते थे नॉन मोटर सिम्टम्स का, कि इनमें से जो है आप टिक कर दें, और फिर जब हम एनकाउंटर में पेशेंट को देख रहे होते थे तो उसमें से फिर हम उनके सिलेक्टेड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते थे. तो एक मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तरीका है जो हम अपने सेटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास वेट तो बहुत कर रहे होते हैं अक्सर, तो वो बैठ के वो कोई फॉर्म्स वगैरह फिल कर लें और हम इसको उर्दू ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं. कुछ इस तरह के काम किए जा सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हम इस तरह चीज़ें मिस नहीं होगी. दूसरी बात यह है कि a very important thing is that many non-motor symptoms can be side effects of our medications that we are giving. Hypotension, जिस तरह हमें पता है, it can be a side effect of levodopa.
एंड जो है पेन, levodopa induced dystonia और पेन बहुत दफा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है हमारी ट्रीटमेंट की, तो वी शुड बी विजिलेंट इन आस्किंग। इवन डीपीएस की भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो बहुत सारे नॉन मोटर symptoms of Parkinson's can be actually complications of our treatments. Two prominent non-motor symptoms have been linked with decreased life expectancy. As we know, Parkinson's disease itself does not lower life expectancy by more than 1 to 2 years, but psychosis and dementia, they do. So again, an important thing to recognize. The list is long and it is growing. अभी जो latest मेरे पास non-motor symptom questionnaire है उसमें 30 questions, 30 symptoms लिखे हुए हैं। अब ये सब के सब मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम भी नहीं है और कुछ मुश्किल हो जाता है एक सेशन के अंदर करना। इनमें से कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं सोचूंगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, देयर आर 2 रूल। ये रूल्स मैंने खुद बनाए हैं, आई हैव नॉट रेड देम, लेकिन मैं हमेशा जब भी पार्किंसन डिजीज के नॉन मोटर सिम्टम्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें आई यूज्ड टू स्ट्रेस ऑन दीज 2 रूल्स। तो आप चाहे बाकी प्रेजेंटेशन में इतने ज़्यादा अटेंटिव हो ना हो, लेकिन काइंडली इसके ऊपर पे अटेंशन। सो पहला रूल मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, वो हमारी लाइफ बहुत आसान कर देता है कि ट्रीट द नॉन मोटर सिम्टम्स इन पार्किंसन डिजीज एज यू वुड ट्रीट देम इन पेशेंट्स विदाउट पार्किंसन डिजीज। मिसाल के तौर पे अगर डिप्रेशन है पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को, तो आप जिस तरह यूजुअली डिप्रेशन ट्रीट करते हैं उसी तरह ट्रीट कर लें। कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको ट्रीट कर लें, ऑर्थोसिटी हाइपोटेंशन है तो उसको ट्रीट कर लें। बहुत इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो हम जैसे जैसे स्लाइड्स जाएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जनरली इट कैन बी कॉल्ड एज अ रूल के आप उसको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पार्किंसन डिजीज के बगैर करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो बहुत हमें स्ट्रेस करना चाहिए वो ये है कि पेशेंट की ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में नॉन मोटर सिम्टम्स को क्या फर्क पड़ रहा है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि जी फटीग बहुत सीवियर है, ठीक है, तो आपको फटीग के अंदर ये लाजमी पूछना चाहिए कि वो पेशेंट को ऑन स्टेट में फटीग बेहतर हो जाती है और क्या ऑफ में वर्स हो जाती है या नहीं। इसी तरह अगर कोई आगे कहता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है और बिल्कुल उठने का दिल नहीं करता, तो उसको भी आप लिंक करें कि ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में उसका क्या इफेक्ट है। इसी तरह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ऑलमोस्ट हर सिम्टम, उससे इसको आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सिम्टम्स ऑन स्टेट में इम्प्रूव हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपको ऑन स्टेट को बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। यानी कि आप नॉन मोटर सिम्टम्स को भूल के दोबारा से मोटर मैनेजमेंट पे चले जाएं और देखें कि इसकी हम ऑन स्टेट को किस तरह लंबा कर सकते हैं, और अगर आप वो कर देंगे तो उसकी इनडायरेक्टली नॉन मोटर सिम्टम्स भी बेहतर हो जाएंगे। तो इस वजह से इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो। अब जो सिम्टम्स ऑन स्टेट में भी इम्प्रूव नहीं होते उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है और उनके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए। आपको सिर्फ डोपामिनर्जिक मेडिकेशन ऊपर नीचे करने से उसमें हेल्प नहीं होगी। तो बहरहाल ये हमारे 2 रूल्स थे जो मैं स्टार्ट में बताना चाह रहा था। नाउ यू कैन गो बैक टू स्लीप। तो खैर, the non-motor symptoms of Parkinson's disease list लंबी है, I will skim through them and hopefully finish in the next 10 minutes. So sensory symptoms, pain बहुत important है recognize करना। Many people don't believe कि pain भी एक symptom हो सकता है Parkinson's disease का, लेकिन it has been reported और लोग इसको एक किस्म की ना constant pain और एक dull aching pain की तरह कहते हैं कि जी हमें शुरू हो गया था उस साइड पे जिस साइड पे बाद में जाके bradykinesia और tremor हुआ। It can precede the motor symptoms by many months. Frozen shoulder के साथ बहुत frequently present करते हैं लोग, और ऑर्थोपेडिक्स और रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं, बाद में रिकग्नाइज होता है कि एक्चुअली वो पार्किंसन डिजीज की सिम्टम थी। तो पेन काफ़ी कॉमन सिम्टम है। बाकी हम आगे चलते हैं। एकैथीसिया और आरएलएस। एकैथीसिया का मतलब है रेस्टलेसनेस और आरएलएस के अंदर भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। दोनों में एक फीलिंग ऑफ इनर रेस्टलेसनेस होती है। अगर आप पेशेंट से पूछें कि क्या आपको बेचैनी होती है, हमारे यहाँ बेचैनी एक इसकी अच्छी ट्रांसलेशन है। क्या आपको बेचैनी होती है, तो अक्सर लोग कहेंगे कि हाँ हमें बेचैनी होती है। और उसमें आरएलएस और एकैथीसिया में फ़र्क ये है कि अगर वो ज़्यादा लेग्स की बेचैनी कह रहा है और ऊपर बाकी बॉडी की इतनी नहीं कह रहा, तो फिर आप उसको आरएलएस कह दें। और अगर सारी बॉडी में एक किस्म की उसको रेस्टलेसनेस हो रही तो उसको एकैथीसिया कह लें। ऑल्दो ये डिफरेंशिएशन कई दफ़ा वेग हो सकती है। एंड बोथ रिस्पॉन्ड टू डोपामिनर्जिक थेरेपी। डोपामिनर्जिक थेरेपी यानी कि हम उसको लीवोडोपा या डोपामिन एगोनिस्ट दें। डॉक्टर नबील, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर नबील जी, हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ।
यार ये थोड़ी सी अपनी आवाज में थोड़ी तेजी लेके आए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत कमजोर महसूस हो रही है। अच्छा चलें, आई एम ऐसा सॉरी। महसूस। मैंने तो हेडफोन भी इसलिए लगाया था कि शायद इसमें हेल्प हो। नहीं, आपकी सॉरी, तबीयत भी अब थोड़ी आपको लो आवाज हो गई बेहतर हुई तो है? उसमें। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब सही, अब बहुत बेहतर हुई है। इसको थोड़ा, क्योंकि ये बहुत अहम चलें। आप, और उसको जो आपने 2 रूल्स बताए हैं उसको अगर थोड़ा सा बुरा ना बनाए तो एक दफा फिर रिपीट ठीक करते, है, कई थोड़े होंगे तो वो जाग जाएंगे ना। हाँ, ये। ठीक है, चलिए बहुत थैंक यू सो मच। और अब ठीक है, आवाज है? जी सर, जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट डॉक्टर तुम्हारी। तो दो रूल्स बड़े सिंपल से हैं ये, और जो मैंने खुद बनाए हुए हैं अगेन। तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट द नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज एज यू वुड ट्रीट देम इन पेशेंट विदाउट पार्किंसन डिजीज। एंजाइटी को, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को, डिप्रेशन को जिस तरह आप वैसे ट्रीट करते रहते हैं उसी तरह पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स में ट्रीट कर लें। तो दिस रूल विल होल्ड फॉर मोस्ट ऑफ योर पेशेंट्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आगे बता दूंगा। और दूसरा रूल ये था कि अगर उनकी नॉन मोटर सिम्टम्स ऑन और ऑफ स्टेट में डिफरेंट हैं तो ट्राई फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर ऑन स्टेट। ऑन स्टेट को प्रोलॉन्ग करें, ज़्यादा बेहतर करेंगे, उससे इनडायरेक्टली उनके नॉन मोटर सिम्टम्स जो ऑफ स्टेट में हो रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लैक ऑफ मोटिवेशन, डिप्रेशन और जो है फटीग, उसके लिए खास तौर पे। तो बेसिकली ये दो रूल्स थे। तो अब सेंसिटिव सिम्टम्स की हमने कुछ बात की। हमने कहा कि फ्रोजन शोल्डर के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं। आरएलएस और एकैथीसिया में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दे बोथ इम्प्रूव विद डोपामिनर्जिक थेरेपी। और डोपामिनर्जिक थेरेपी का, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं सबसे पैनलिस्ट से या अटेंडीज से कि जी व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट मेडिकेशन टू ट्रीट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एग्री कि जी डोपामिन एगोनिस्ट है, वो रोपिनेरोल या प्रेमिपेक्सोल या रोटिकोटीन या जो भी है, दे आर वेरी वेरी पोटेंट। तो आई आल्सो एग्री दैट इज ट्रू। सेकेंड नंबर पे अगर पोटेंसी में देखें तो फिर आ जाती है लीवोडोपा। ठीक है, सिनेमेट काम करती है। लेकिन इन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है विद प्रोलॉन्ग यूज द सिम्टम्स प्रोग्रेस अपवर्ड्स इन द बॉडी। यानी कि पहले रेस्टलेस लेग सिर्फ टांगों में था, तो अब वो रेस्टलेस ट्रंक बन गया और रेस्टलेस आर्म्स बन गया और सारी बॉडी में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है विद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट। और दूसरी प्रॉब्लम होती है सिम्टम्स स्टार्ट टू बिकम एविडेंट अर्लियर इन द डे। अगर पहले रात को 10 बजे उसको आरएलएस हो रहा था, तो अब वो 8 बजे हो जाएगा, फिर 6 बजे हो जाएगा, और फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में उसको इवन मॉर्निंग्स में भी वो सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स का अपर बॉडी में ट्रेवल करना या अर्लियर इन द डे होना और सिविरिटी में इंक्रीज हो जाना, इसको ऑगमेंटेशन ऑफ आरएलएस बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है विद प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट एंड लीवोडोपा। और ऑगमेंटेशन इन आरएलएस का पेशेंट अगर आपने देखा होगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो बेचारा पेशेंट बहुत मिजरेबल होता है, क्योंकि ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। आप उसकी सिम्टम्स को इंप्रूव करने के लिए दोबारा डोपामिन एगोनिस्ट बढ़ाते हैं, उसके कुछ अर्से के लिए सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, बाद में फिर आ जाते हैं, और फिर एक्चुअली इसका कोई एंड नहीं है। तो इस चीज की वजह से अब करंट गाइडलाइंस में इनको सेकंड और थर्ड लाइन ड्रग्स में डाल दिया गया है। करंट गाइडलाइंस एक्चुअली फेवर यूजिंग गैबापेंटिन एंड प्रीगैबलिन, जिससे कभी भी ऑगमेंटेशन नहीं हुई है। और डोजेस थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। गैबापेंटिन आपको 3600 मिलीग्राम तक जाना पड़ता है, प्रीगैबलिन आपको कई दफा 600 मिलीग्राम तक जाना पड़ता है। लेकिन इन ऑल्दो ये लेस पोटेंट है, लेकिन दे आर सेफर इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ आरएलएस। तो इसलिए उससे आप स्टार्ट किया करें ट्रीटमेंट फॉर आरएलएस, चाहे वो पार्किंसन डिजीज रिलेटेड आरएलएस हो या आइसोलेटेड आरएलएस हो। और फिर ओपियोइड्स का हमें पता है कि ओपियोइड्स भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। अगेन वो भी ऑगमेंटेशन नहीं करते, लेकिन उनकी और प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि डोपामिन एगोनिस्ट ऑल्दो आर मोस्ट पोटेंट, बट ट्राई टू ट्रीट आरएलएस बाय यूजिंग गैबापेंटिन एंड प्रीगैबलिन। हाइपोस्मिया के ऊपर डॉक्टर शुएब ने जिक्र किया, बहुत कॉमन है। अजीब बात यह है कि अमेरिका में जब मैं पूछता था तो 99% ऑफ पेशेंट्स अक्सर कहते थे हाइपोस्मिया है। पाकिस्तान में मैं ये सवाल ऑलमोस्ट हर मरीज से करता हूँ, बहुत ही कम लोग कहते हैं कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल खराब है। इस पे हमारी, मेरा ख्याल है, बहुत सारी और रीजंस हो सकते हैं। इसकी स्टडी भी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्यों हाइपोस्मिया डिफरेंट है, क्या वाकई डिफरेंट है भी कि नहीं, या हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे। तो बहरहाल हाइपोस्मिया एक इम्पोर्टेंट नॉन मोटर सिम्टम है।
ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, स्पेशली ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के बारे में ये याद रखें कि हमें पता है कि कार्बिडोपा लीवोडोपा जो हमारी मेडिकेशन है सिनेमेट, उसमें कार्बिडोपा हम क्यों देते हैं, क्योंकि डोपा डी कार्बोक्सिलेज को हम इनहिबिट करते हैं ताकि पेरिफेरल उसकी मेटाबॉलिज्म लीवोडोपा की डोपामीन में कन्वर्जन ना हो। अगर हम ये ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर हम कार्बिडोपा नहीं देंगे, खाली लीवोडोपा दे देंगे, तो सारी की सारी डोपामीन पेरिफेरल बन जाएगी, जिसकी वजह से डोपामिनर्जिक वो आपको पता है कि ब्लड वेसल्स पे, रीनल ब्लड वेसल्स पे, और उससे हाइपोटेंशन और ये सारा कुछ होता है, और वॉमिटिंग और ये सारा कुछ। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम कार्बिडोपा को ज़्यादा मिकदार में दें, जिस तरह 25-100 फॉर्मुलेशंस हैं वो बेहतर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सिनेमेट IR है इमीडिएट रिलीज वाली, वो 25/250 में अवेलेबल है, जो कि एडिक्वेट डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट नहीं करती है। तो खैर मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि बेसिकली हाइपोटेंशन का वर्स हो जाना विद गिविंग सिनेमेट काफ़ी, मतलब इट मेक सेंस, ये हमारे लिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ना सिर्फ सिनेमेट से बल्कि डोपामीन एगोनिस्ट से भी हाइपोटेंशन, जो पोस्टरल हाइपोटेंशन है, वो वर्स हो सकती है। तो उसके लिए एक तो हमें मेडिकेशंस को देखना है, और दूसरी बात इसमें यह है कि मैंने एक फ्लो चार्ट भी करना था, वो पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, और जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो हम करते हैं वो ये है कि इंक्रीज वाटर इनटेक और सॉल्ट इनटेक को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है और हमें अलाउ कर रहा है तो हम पहले उस तरह करेंगे। सेकेंडली मेडिकेशन अगर एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा डोपामिनर्जिक मेडिकेशन को अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं तो हेल्प हो जाती है। टेड स्टॉकिंग्स वगैरह से हेल्प होती है। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और माइडोट्रिन उसमें हेल्प कर सकती है हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछना इसलिए भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये पेशेंट बहुत कम होता है कि वो आके आपको कहें कि जी हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रही है, या हम खड़े होते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स हमें प्रेजेंट करते हैं फटीग के साथ कि सारा दिन उठने का दिल नहीं करता, तो और बैठा रहूँ तो ठीक है। तो अक्सर ये भी जो कांस्टेंट फटीग है ड्यूरिंग डे टाइम, ये भी एक सिम्टम होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फॉल्स। जब पेशेंट फॉल्स विद पार्किंसन डिजीज के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पूछना कि आप क्या फॉल्स उठ के एकदम जाने के बाद फौरन ही तो नहीं हो जाते। अगर आप बैठे में हो या वॉशरूम आते या जाते थे, तो वो भी अक्सर उसमें जो रीज़न होती है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, और ये ट्रीटेबल है। हमें उसके लिए पोस्टरल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स करनी है, और अगर ख़राब हो तो हम उसको ट्रीट करेंगे, तो हम फॉल्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और फटीग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं काफ़ी ज़्यादा स्किम थ्रू कर लूँगा, अगेन फॉर द सेक ऑफ टाइम। आई वुड really like to discuss जो important cognitive problems हैं पार्किंसन डिजीज में या साइकोसिस। तो साइकोसिस और कंफ्यूजनल स्टेट बिल्कुल जो मेरी प्रेजेंटेशन के लास्ट में है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि पार्किंसन डिजीज जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है, यानी कि जो रेगुलर पार्किंसन डिजीज है, उसमें शुरू में हेलुसिनेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स अगर स्टार्ट में है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग, जो कि जिस तरह डॉक्टर शुएब ने एक्सप्लेन किया। लेकिन लेटर ऑन पार्किंसन डिजीज के अगर इफ यू फॉलो देम लॉन्ग एनफ, ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेशेंट्स विद पार्किंसन डिजीज विल हैव कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स व्हिच मे इंक्लूड हेलुसिनेशंस, पैरानोइया, डिल्यूजन्स और इस तरह की चीजें। तो जो हेलुसिनेशंस इन पार्किंसंस होती हैं वो विजुअल होती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत रेयर हैं, और विजुअल हेलुसिनेशंस के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं, और वो अक्सर जो होती हैं वो नॉन थ्रेटनिंग होती हैं। वो उनको बच्चे नजर आते हैं या छोटे से जानवर जो नॉन थ्रेटनिंग है, अब बिल्लियाँ या इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमनली नजर आती हैं। अक्सर हेलुसिनेशंस शुरू में टॉक नहीं करती, वो चुप करके बैठे होते हैं वो लोग, और पार्किंसन डिजीज के पेशेंट उनसे बात कर रहे होते हैं लेकिन वो आगे से जवाब नहीं दे रहे होते हेलुसिनेशंस। लेकिन एज द डिजीज प्रोग्रेसेस तो ये उनके लिए रियलिटी से सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है। बाद में वो दे स्टार्ट टॉकिंग, और फिर पेशेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एडवांस डिजीज में। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम कोई ऐसी मेडिसिन ना दे रहे हो जिससे उनका साइकोसिस और हेलुसिनेशंस वर्स हो रही हो। बहुत कॉमनली हमारे पेशेंट जो एडवांस पार्किंसंस के होते हैं उनको हम अमेंटाडीन दे रहे होते हैं, पीकेमर्स, और साथ ही हम लोग ट्रेमर के लिए कई दफ़ा एंटीकोलिनर्जिक्स दे रहे होते हैं, चाहे वो प्रोसाइक्लिडीन हो, कैमेड्रिन, कैम्प्रो या एक्सिडिल वगैरह हो। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकेशन जो रिड्यूस करने की ज़रूरत है वो है अमेंटाडीन। तो पीकेमर्स को ऐसे पेशेंट को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि
हेलुसिनेशंस। अच्छा, और एक बात मैं और भी बोलूं कि जब आपको मैनेजमेंट के दौरान पार्किंसन डिजीज पेशेंट की मैनेजमेंट के दौरान यूँ लग रहा हो कि हम मोटर सिम्टम्स को ज़्यादा ट्रीट करें या नॉन मोटर को करें, या इन अदर वर्ड्स हम उसकी कॉग्निशन या माइंड को ज़्यादा फोकस करें हेल्दी करने के लिए या मूवमेंट को। फॉर एग्जांपल आपको पता है आप उस एडवांस पार्किंसन पेशेंट की लीवोडोपा बढ़ाते हैं और उसका ट्रेमर बेहतर हो जाता है, मूवमेंट बेहतर होती है, लेकिन साथ उसको हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या ऐसी दवाई देना चाहेंगे कि नहीं? तो हमेशा ये याद रखिए कि मेरा तो यही रूल है कि अ हेल्दी माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अ हेल्दी बॉडी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट की अपनी मेंटल कैपेसिटी है। तो अगर पेशेंट को पीकेमर्स या मेटाडीन से हेल्प हो भी रही है, लेकिन उसको अगर साथ हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो इट्स बेटर, फार बेटर ऑफ कि उसको हम उस मेटाडीन बंद करें, और ताकि उसकी मेंटल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो। दूसरी मेडिकेशन जो मैं उसमें रोकूंगा वो ज़ाहिर एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली साइकोसिस और उसमें कंकरेंट कोई यूटीआई चल रहा होता है, या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोनेट्रीमिया चल रहा होता है, तो वी शुड स्क्रीन फॉर ब्लड शुगर, सोडियम, यूरिनारी, ये चीज़ें करके उसके बाद अब मेंटेटीन और पीके जो कैंप्रो वगैरह उसको बंद करें। फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप उसकी डोपामीन एगोनिस्ट अगर हैं वो बंद करें, और हम फाइनली लीवोडोपा को अक्सर बंद करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि साइकोसिस में एक ड्रग अवेलेबल है अमेरिका में, पीमाबेंसलिन नुप्लाजिब, और आई हैव सीन इट वर्क, काम भी करती है, लेकिन पाकिस्तान में वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जो हमारी कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो यूजुअली इसमें काम नहीं करते एक्सेप्ट फॉर क्लोजापीन। क्लोजापीन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसके साथ ब्लड सेल मॉनिटरिंग का इशू है। जो हमारा कॉमनली यूज ड्रग है क्यूटायापीन, वो इसमें काम नहीं करती है, और इसके ऊपर मल्टीपल स्टडीज हैं कि इट डजंट वर्क। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली मुझसे अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं 4-5 मिनट में, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो इस मौके पर डॉक्टर नबील से कर लें, क्योंकि उन्होंने अभी क्लिनिक अपनी करनी है, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो आखिर में करेंगे उसमें वो नहीं होंगे। एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, कोई करेगा। एक क्वेश्चन है डॉक्टर नबील के, प्लीज नेम द ड्रग्स दैट्स अवेलेबल, प्लीज नेम द ड्रग दैट्स अवेलेबल इन जी, वो यूएसए। मेरा ख्याल है वही दवाई पूछ रहे हैं जो साइकोसिस के लिए, वो नुप्लाजिब या पीमाबेंसलिन है फॉर साइकोसिस। जी, डॉक्टर फालिया पूछ रही हैं, तो वो मैंने हाँ उसी में नीचे टाइप कर दिया है। ठीक है। एनी अदर अच्छा, इस पे, क्वेश्चन? हाँ, इस पे क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने कहा ना कि यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, इसको थोड़ा सा और वजाहत हो जाए तो मुनासिब होगा कि पीके मर्ज के हवाले से, या पीके मर्ज नहीं, किसी भी वजह से अगर फर्ज करें कि उसके हेलुसिनेशन या दीगर इस तरह की चेंजेस हो रही हैं और साथ में मोटर इफेक्ट, तो हाउ वी अप्रोच, हाउ पेशेंट विल बी, बिकॉज इन एडवांस फॉर्म we usually see the patient in different psychiatric problems in term of psychosis, in term of yani patient has also on and off phenomena, patient has also the other side effect, and beside this he or she had a other pure psychiatric issue. So how to approach in term of these non-motor sign and symptoms? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। सो अगेन, अगर से हमारे पास प्रॉब्लम रही है कि एडवांस पार्किंसन का पेशेंट है जिसको मोटर ऑन ऑफ फिनोमेना भी चल रहा है और साथ उसको अब साइकोसिस भी डेवलप हो गया है, तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट भी हाईलाइट किया है। तो वो अगेन मेरा उसमें यही अप्रोच होती है कि उसमें पहले ये पूछना चाहिए कि कोई अंडरलाइन कॉज तो नहीं है, इस वक्त कोई यूटीआई तो नहीं चल रहा, कोई और प्रॉब्लम्स, फीवर तो नहीं है, चेस्ट न्यूमोनिया तो नहीं चल रहा, तो हम एक तो वो रूटीन वर्कअप कर लेंगे। दूसरा ये है कि जो मेडिकेशंस हम लोग उस टाइम पे, लाइक आपको पता है कि उस टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट बना होता है ना, उसमें ना सिर्फ सिनेमेट होती है बल्कि शायद डोपाकोन या सिलेजनिन और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है, तो रेजिमेंट को सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है।
तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स को कम करते जाएं जब तक कि आप खाली सिनेमेट पे ना रह जाएं। तो आई वुड स्टार्ट विद स्टॉपिंग पीकेमर्स और ये चीज़ें, और इससे अगर उसका मोटर सिम्टम्स खराब हो रही हैं तो उसको काउंटर करने के लिए सिनेमेट को ही बढ़ा दें, क्योंकि सिनेमेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट टॉक्सिक मेडिकेशन। तो उसका हमें रेजिमेन अक्सर बाकी चीजें हटा के खाली सिनेमेट पे लाना पड़ता है। ठीक